I know that the resounding refrain of oneness is more for the values that have been eulogized. You know, the beauty of an art form is that in just a few minutes, one could recreate an epoch. One could step into pages of history. One could bring to life the pains and pangs, the weal and woe of a world that is changing drastically. And therefore, this Natya Veda, Panchama Veda, sieved from the essence of the four Vedas, that should not be lost to us. Please understand, I have traveled all over the world. About 32 years back, I got married. My husband was from Australia. Oh, they say Australia. But I told him, the Sydney Harbour Bridge does not appeal to me as much as the Ganga. Does not appeal to me as much as the little underprivileged sector children who depend on me, and the many little feet that seek me out. I know that when the time comes, they get married and they move on. Between the pressures of academics and aesthetics, the aesthetics of life always loses out. Parents tend to think that the aesthetics will suffocate them. Because yes, why do you need tuitions? Tell me, do you really need tuitions, parallel coaching classes, when your teachers are teaching you? You know the language. You don't need to wait till a teacher teaches you history or geography. We know everything about a digital world, but a self-study through the vacation will help you to understand. And if you understand, you could help someone else who did not understand. That is the way. Diksha, there is no parallel coaching. There is a one-to-one connect between the guru and the shishya. No one can take the place of a guru because the guru sheds layers from the student and does not create a new student. He gives her back to her very self. And that self-realization is very much important for all of you. Please don't allow mediocrity, which is the order of the day today. You sneeze, it is on the social media. Somebody's funeral, somebody's outside the ICU, you will put it in the social media. We have become so ridiculous that we need to change. And you should be the change. As I said, be the change that should be there in this world. Once again, to all of you. You know, this moment I complete 60 years of my performing career. 1962, I was initiated, and my father said, don't flirt with anything in life. Master it and see that you spread it. Master everything, otherwise you're wasting your time. You see, if it can be of use to contribute. There were many things that I wanted to do. Write, dance, create, research. And then I realized that everything I could do with this one dance form, where I research, where I use dance as a therapy, dance and architecture, dance and the physiology of the body, dance and the environmental awareness, the ecological awareness. Everything is related in this interconnected world. You know, dance is music made visual. You heard many people in the audio today. I must take their names
because, we are very fiercely possessive. Even Meera K. Prabhu, Shri Jayadeva Hare, Kanakadasas, Adi Keshava. Every god, everything is related to a fiercely possessive connect, you see. So I bow down to every hand that has created the music. Dance is music brought to life. Shri N.N. Shivaprasad, though he's not here, please give him a very big hand. Alkaji, Shri Chandran, Guru S.P. Srinivasan, the Nattuangam, Mardal, Shri Rohan, Nambishan, Edikya, Mardalam. You see, this Sangat of the music transforms dance to a satsang. I hope you enjoyed this visual prayer. Thank you. Thank you. Thank you. He is Nanjibai. No, because I always believe that every moment is ordained. Nothing happens. We think that we are creating. No. It's an ordained script. Jan 4th was the day. And there were many others, about 20 students who were to come. But the date shifted. And one thing I have been taught by my father is that a commitment to the word. It does not matter that the tickets have been cancelled or that is life. God is always testing me, I think, whether I keep up that word. And her grace and the support of, they have made up for the many feet that should have been here. I have tried to be all of them, gathered them all around the stage. And Dr. Sunil Sunkara, he is a scientist who was teaching abroad. He gave it all up because he's a scientist with the soul of a Kathak artist. So, Sunil has been the recipient of the Yuva Puraskar Bismillah Khan this year. Please give him a... Yes. And he is very much connected with the art of living. He is very much... Research is part of us, We can't do. The day you stop seeking, the day you feel that there's nothing more to seek in this world, you age. You don't need a spa. You don't need a beauty parlor and you spend 5,000, 6,000 on something that is so temporary. The real glow comes when you connect. It's perennial, the heady bliss of connecting and seeing the one in all and all in the one. They have come to me as little kids. And I pray to God that they connect. This dance form is very important. Ananya is a wonderful senior artist, all reaching out to the national level, the empanelment, which is the next level, and also a very intelligent student who is pursuing her career in commerce, right? Humanities. I've been under her tutelage for 13 years now, and it's truly a blessing to be her student, and as she says, everything is ordained, and I'm so glad this is what was ordained for me. Thank you so much for this opportunity, and thank you. And that's Lavanya. She's holding an important post, City Finance. Yes. Bank. Yes, City Bank. Sure. So, thank you, ma'am. So, I'm a banker by profession, and the beauty is, like I was not a child when I joined her. So, at my younger days, I don't know, but it's really a blessing to be her disciple. Like some good deed that I'm still with her, and I'm always been with her. No, actually, this world is, I'm telling you, there are students who reach out to me. This is the size. And then today I realized that there is a vacant void in everyone. You're working and working. And the Google eye follows you, the internet follows you,
the companies sieve you, the energy out of you, and then this art comes as a buffer. Its cathartic magic embalms you and teaches you that between then and now is that life breath. You see, great saints used to say, this shwas separates me from you, O Krishna. But human beings, they say, this shwas, oh, let me have an oxygen mask. Again, let me be in this Maya. You see, that is the way this world is. But I think art as a therapy, art for the working women, art for the differently abled. In this one lifetime, even if God takes me at any moment, I can always tell him, I stretched the day, not 24, 48, 96, to reach out with him. Thank you. अपनी कला के द्वारा हमारे पूज्य कुलपिता जी की जीवनी को इस मंच पर आपने जीवंत किया। आपकी भाव छाया में न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया होगा, आगे बढ़ाया होगा। आपकी कला ऐसे ही हर एक इंसान को उन्नत दिशा की तरफ ले जाए, ये कामना गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच कलाश्री लता सुरेंद्र जी। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि वेद उपनिषद में एक अमर ब्रह्म रूपी शब्द है ओम। उसी के 3 सुर से संगीत के 7 सुर बने। हमारे पूज्य कुलपिता जी की सप्तमी सृष्टि समान इस आर्य कन्या गुरुकुल के शिर मुकुट पे उन्होंने ओम जैसा तेजस्वी शब्द अंकित किया। ये हमारे कुलपिता जी का संगीत और कला के प्रति अद्भुत प्रेम को दर्शाता है। उसी कला और संगीत के माध्यम से आपने पूज्य कुलपिता जी को जो भावांजलि दी है, उसके लिए बृहद गुरुकुल परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। थैंक यू मैडम। गुरुकुल की इस पावन भूमि पे आज हमारे हृदय के सूर के समान आदरणीय आर्य कन्या गुरुकुल बृहद गुरुकुल परिवार के वरिष्ठ सम्मान चल पड़ते हैं। फिर जिंदगी के किसी ठहरे हुए मोड़ पर जाकर हमें याद आता है कि हम उनको थैंक्स कहना ही भूल गए। आर्य कन्या गुरुकुल बृहद परिवार ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। बड़े लंबे अरसे के बाद आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कुल भ्राता आदरणीय श्री महेंद्र भाई जब है, तब हम आपके प्रति अपना स्नेह, आदर और प्यार मोमेंटो द्वारा व्यक्त करना चाहेंगे। पूज्य कुल भ्राता से निवेदन है कि आपके परिवार द्वारा स्थापित आर्य कन्या गुरुकुल के से जुड़ी हुई हर एक छात्रा, हर एक कर्मचारी का प्यार और आदर का प्रतीक है ये मोमेंट।
थैंक यू सर, थैंक यू। पर्सन के रूप में उपस्थित प्रोफेसर रवि झाला सर का मोमेंटो देकर सम्मान करें। में करीबन 30 साल का अनुभव रखने वाले झाला सर के मार्गदर्शन में 5 स्टूडेंट पीएचडी और 15 स्टूडेंट एमफिल कर चुके हैं। से कि वे हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर दिलीप आसर सर का मोमेंटो देकर सम्मान करें। मैम एजुकेशन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें गुजरात राज्य विद्यालय ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी के चेयरपर्सन जूही मैम से कि वे डॉक्टर विशाल भदानी सर का मोमेंटो देकर सम्मान करें। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के ट्रस्टी भी रहे हैं। उन्होंने गुजरात राज्य के कई टीचर और प्रोफेसर्स को साइंस ऑफ लर्निंग विषय में प्रशिक्षित किया है। लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन के प्रोफेसर और वाइस चांसलर डॉक्टर विशाल सर। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू मैम। डॉक्टर मिहिर दवे सर को मोमेंटो देकर सम्मान करें। सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, ज्ञाता है। इकतीस साल का अध्यापन क्षेत्र का उनका अनुभव है और उन्होंने एन इको एनालिटिकल रीडिंग ऑफ टी.एस. एलियट्स पोएट विषय में पीएचडी किया हुआ है। पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। वे बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सभ्य, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और साल 2004 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में अधरधन चेयरमैन रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे कई सामाजिक संस्थान के साथ भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू नवगण सर, थैंक यू सर। असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री जॉन मैडम को भी सम्मानित करना चाहूंगी। मैं अपनी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रोहिणी बा जाडेजा से नम्र निवेदन करती हूं कि वे असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मैम को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।
करती हूँ कि वे अपने फीडबैक दे प्लीज मैम। प्रतिभा महेंद्र भाई, निरंजन जी, सर, उपस्थित सारे टीचर्स, लता जी, आपका एक्सीलेंट डांसर्स, सुरेश भाई, रंजन बेन एंड क्या कहूँ, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये आपने मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए। तो बस ये कहूँगी कि सुबह से यहाँ पर थी और मुझे मैं नानजी भाई को मिली नहीं। जब मेरी शादी हुई तो तब वो नहीं थे, मगर बाद से मेरी मुलाकात हुई और उनके आशीर्वाद मुझे मिले। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब बाद से मैं मिली ना, तो वो उनकी एज थोड़ी सी हो गई थी, मगर मुझे इतना याद है कि वो जब बैठी थी इतनी सुंदर थी, तो मैं सोच रही थी जब ये जवान होंगी तो ये कितनी खूबसूरत होंगी। चलिए, उनसे मिलना हुआ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं ये हमारे साथ हैं, इसीलिए हम आज हैं। और हम जो भी काम कर रहे हैं आज और करते ही जाएंगे, इस संस्था के लिए, गुरुकुल स्कूल के लिए, बस अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो इनके सपने थे, अगर थोड़े से अधूरे रह गए तो हम उन्हें पूरा करेंगे। इसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए होगा, सबका, चाहे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका, सब साथ मिलकर हम, वो तो है ही, वो तो है ही। और मैं कहूंगी कि जब से डॉक्टर नागर आए हैं यहाँ पर, तो जैसे कि बहार आ गई। देखिए, मेरे पास तो कोई स्पीच रेडी है नहीं, तो मैं जो मुझे याद है मैं वैसे ही बता दूंगी। मुझे याद है कोई 5 साल हुए हैं सर, सुरेश भाई जब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं थे, तो हमें प्रिंसिपल हम ढूंढ रहे थे, तो सुरेश भाई ने इन्हें शॉर्टलिस्ट किया था। और हम दीदी जी के घर में, यानी मुझे ऐसे ही लगता है कि वो एक डिवाइन मोमेंट था कि हमारी मीटिंग डॉक्टर नागर से दीदी जी के घर में, सुरेश भाई उन्हें लाए हैं और काका वहां पर उपस्थित थे, श्री धीरेन्द्र भाई, उमा बहन भी थी और मैं भी थी, बाकी तो विदेश में रहते हैं। तो उनके घर में हम मिले हैं। और आई रिमेम्बर, आई थिंक ऑल ऑफ अस वर सो इम्प्रेस्ड कि जैसे ही डॉक्टर नागर आए, हिज फर्स्ट वर्ड्स वर कि श्री नानजी भाई ने, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और ये उनका सपना था कि यहाँ पर सिर्फ एक कॉलेज और स्कूल नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरी ऐसी फीलिंग थी, बाप रे, ये हमें इस ऑलरेडी, मतलब उनके कदम यहाँ आए हैं और ये उस ऊंचाई की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी। एंड इट फेल्ट सो गुड। एंड सच्ची में जब से वो आए हैं सुरेश भाई, वो काम पर लग गए। और आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 3-4 सालों से हैं, कि हर चीज को चमकाते जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पूरा कॉलेज उन्होंने, मतलब
खिला दिया है, यानी बाहर आ गई यहाँ पर। कोर्सेज इतने इंस्टीट्यूट किए, और आपको जैसे कि आज का दिन भी, दिस रियली वाज हिज आइडिया कि वी मस्ट सेलिब्रेट आवर लेगेसी। इट रियली वाज हिज आइडिया। आई रिमेम्बर आप सर आए ही थे और आपने पहले ही कहा कि नहीं, अगले साल हमें इंटरनेशनल सेमिनार करना है ऑन सर डेविड हेनरी डेविड थोरो। एंड वी वर लाइक, अरे बाप रे, हमने नेशनल नहीं सोचा, आपने इंटरनेशनल सोच लिया। एंड तब से आज तक one experience after the other he has been giving, all for the students, ताकि आपके minds expand हो, आपके experiences, आप you blossom. It's not just about reading a history book, or just not about a science book, or not just that little book knowledge, but listening to great minds, listening to great people, their experiences, that enlightens us. And not just you, I would like to admit, it is even me. Even I learn every day that I spend here at Gurukul. I feel like I am growing. And it gives me what you mentioned, Lata ji, that inner happiness, which I am not able to express. And I feel there's a joy in just being here and working for Gurukul. So I think it's all blessings, and I can only say I'm very grateful. I'm very, very grateful that I have been given a chance to contribute in some little way that I can, and I try my best. And really, I just, मैं क्या कहूँ जी, आप सबका धन्यवाद कि आपके साथ मुझे भी कुछ जानने को मिल रहा है, मेरी भी बुद्धि थोड़ी चमकने लगी है। And yes, I'm very, very happy and thrilled that we can all be here. मेरे को exactly वो बात नहीं याद आ रही कि हम सोचते हैं कि we want happiness, or we want a blessed moment. They say every good moment in life where you are with good people, that itself is heaven, that itself is a blessing. So we are all blessed and happy, and thank you for all these experiences. बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी. Thank you. कि आपकी आज बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी, और आपका आइडिया तो इतना सुंदर था कि हमारी बेस्ट स्टूडेंट्स को पौंडीचेरी लेकर जाएं या हैदराबाद में एक एक्सपीरियंस दें. तो मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी, डॉक्टर नागर ज़रूर इसके बारे में सोचिए. और ऐसी एक ट्रिप में मैं भी साथ चलूंगी. एंड इट इज बिगनिंग. हम शुरुआत करेंगे उनके सपनों को जीने की. अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद हमारे पूज्य कुलपिताजी को याद करना ही नहीं है, पर उनकी हर एक बात को अपने जीवन में उतार के उन्होंने जो उम्मीदें इस गुरुकुल के माध्यम से रखी है, उनको जीने का वक्त शायद अब शुरू हो चुका है. तो हम आपकी कही हर बात को याद रखेंगे, और हमारे डॉक्टर नागर सर के मजबूत नेतृत्व के चलते हुए, हम उनके साथ चलते हुए हम उस स्वप्न को जरूर साकार करेंगे. आप बस स्वप्न देखिए, पूरा होगा. बस देखना जरूरी बनता है. एक स्वप्न नानजी भाई ने देखा था, आज हम सब देखते हैं अपनी आंखें बंद करके, उस दिव्य चेतना को याद करके कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी. तो इस परिसंवाद को हम, इस समापन बैठक को हम समापन बैठक नहीं कहेंगे, पर एक नई शुरुआत कह के चलेंगे. इस अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के अंत में मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शांतिबेन मोडवाडिया से गुजारिश करूंगी कि वे सबका ऋण स्वीकार करें. थैंक यू.
मुझे पता है कि आप सब यही राह देख रहे हैं कि जल्दी पूरा हो, लेकिन ये जो कार्य हुआ उसके पीछे कई लोगों का साथ है, सहकार है, शक्ति है। कार्य करना ही होगा क्योंकि ये हमारी परंपरा भी है। तो सबसे पहले मैं हमारे पूज्य पिताजी नानजी भाई कालिदास मेहता, पूजनीय संतोखबा, पूजनीय दीदी माँ, पूज्य धीरेन्द्र भाई की चेतना को प्रणाम करती हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ उस संस्था के संस्थापक, उनके कार्य, उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनकी साहसिकता, अनेक गुण जिसमें थे उसको आज हम याद कर रहे। इतना ही नहीं, लेकिन हमको बहुत कुछ मिला है। तो इस भगीरथ कार्य में जिन लोगों ने हमारा साथ सहकार दिया है, आज इस दिन गुरुकुल के लिए, हमारी कॉलेज के लिए बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही आनंदमय है। और एक दृष्टि से बापूजी को ये शिक्षणांजलि हम दे रहे हैं, तो एक बहुत ही मायने रखता है। मैं इस समापन सत्र के अध्यक्ष माननीय महोदय श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री डॉक्टर निरंजन राजगुरु साहब, चेयरपर्सन डॉक्टर भद्रायु साहब, सम्मानीय कलाश्री लता सुरेंद्र जी एंड उसका ग्रुप, पूजनीय वंदनीय हमारे ट्रस्टी श्री महेंद्र भाई, ट्रस्टी श्री जय भाई, आर्य कन्या विद्यालय ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी के चेयरपर्सन हमारी सबकी प्रिय जोई मैडम, उमा बहन, कमलाक्षी बहन, हेमनाम भाई, वंदनीय सभी चेयरपर्सन श्री, हमारे मानद मंत्री श्री सुरेश भाई और मैडम, हमारे डॉक्टर प्राचार्य नागर साहब, अतिथिगण, अध्यापकगण एवं प्रिय छात्राएं, आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ऋण अदा करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट महोदय माननीय श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री निरंजन राजगुरु साहब का। सर, अपने मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करके एवं सुंदर मननीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित किया, प्रभावित किया और हमारे परिसंवाद की शोभा को बढ़ा दिया है। सब सर, आपके आने से हमारे ये परिसंवाद में 4 चांद लग गया। क्यों तो आप संत हैं और उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहती हूँ। कथन वचन से प्रीतिकर, कथन वचन से प्रीतिकर, ज्यों मुखरित हो संत, ज्यों मुखरित हो संत, धन्य सभा सद हो गए, धन्य हो गया यह मंच। सर, आपके आने से यह मंच भी धन्य हो गया है। मैं हमारी संस्था की ओर से आपका ऋण स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। शुक्रिया। मुझे बहुत आनंद और गौरव हो रहा है कि हमारे बीच आर्य कन्या विद्यालय ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमारे माननीय कुलभ्राता श्री महेंद्र भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई, आपकी उपस्थिति पूरे सभाखंड को एक अपनत्व का भाव महसूस कराती है।
हम सबको एक ऐसा तेज मिलता है, बल मिलता है। भाई, आपकी संस्था के लिए आप तन मन और धन से पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपकी प्रेरक उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन, आपका यह सालस स्वभाव, उससे हम लाभान्वित हुए हैं। आज यह शैक्षणिक सुअवसर आपकी उपस्थिति से सुहावना बन गया है। भाई, आपके प्रति हम सदैव ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। समापन समारोह के चेयरपर्सन डॉक्टर भद्रायु वज्राजानी साहब, जो आजीवन शिक्षक हैं, लोक भारती विश्वविद्यालय के कुलपति, उत्तम वक्ता और अनेक गुणों से सभर, अनेक पदवी और सम्मानों से सम्मानित भद्रायु सर, जिन्होंने हमारे बीच रहकर हमारी संगोष्ठी को सफल बनाने का एक क्यों कहे तो साहस किया है। सर, आपकी उपस्थिति और आपका ज्ञान, आपका समय का योगदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सर, आपके लिए भी हमारी संस्था आपको धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारे बीच एक ऐसी हस्ती और उनका ग्रुप उपस्थित है। आप सभी ने उनकी कला को देखा, जो अपने संगीत और नृत्य की साधक हैं और अपनी साधना के माध्यम से इस स्टेज को, इस रंगमंच को गुंजित कर दिया। लता जी, आप और आपके ग्रुप ने अपने नृत्य के माध्यम से हमें पूज्य नानजी भाई कालिदास मेहता की पूरी जीवन गाथा बता दी। बापूजी के गुण आपके नृत्य में हमें देखने को मिले और साथ साथ बापूजी ने महात्मा गांधी के साथ जो जीवन वार्तालाप किया उसकी भी झलक आपने बताई। इतना ही नहीं, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में मात्र संतोष बा उसकी धर्म पत्नी नहीं, लेकिन स्त्री और पुरुष एक समान पद पर हैं। समानता की भाव पिताजी में जो थी, वह बात आपने अपने नृत्य के द्वारा अद्भुत बताई। अद्भुत। धन्यवाद लता जी और आपके ग्रुप का। मैं जितना भी धन्यवाद अदा करूं कम है, मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं। अब हमारी कन्या विद्यालय के ट्रस्टी, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, हम सब की प्यारी श्रीमती जूही मैडम। सर, मैं अपने शब्दों पर लगाम रखती हूँ, भाभी शब्द आ जाता है। जूही मैडम, जो हम सब की प्यारी हैं, बहुत प्रिय हैं, आपकी कर्तव्य भावना, आपका मार्गदर्शन और आपकी लगन जो भरी पड़ी है, हर एक कार्य में आपकी ये जो भावना है वह हमको मिलती रहती है, प्रेरणा मिलती रहती है। इस संगोष्ठी का जब से हमने आयोजन किया है, इस संगोष्ठी का जब से बीजारोपण हुआ है, तब से आपका सुंदर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैडम, आपका जितना आभार व्यक्त करे उतना कम है। फिर से मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। हमारे ट्रस्टीगण माननीय उमा बहन, कमलाक्षी बहन, हिमनाम भाई, आप सबका भी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं ऋण अदा करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने इस बापूजी के संदर्भ में, इस विचार में उनकी उपस्थिति से इस कार्य को शोभायमान किया था। हमारी संस्था के मानद सेक्रेटरी श्री सुरेश भाई, जिसकी सूझबूझ और हर तरह का मार्गदर्शन हमें समय समय पर
मिलता है इतना ही नहीं, लेकिन सुरेश भाई आपकी पैनी दृष्टि हमें हर एक कार्य को परफेक्शन की ओर ले जाती है। सुरेश भाई आपका और मैडम का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, शुक्रिया। हमारे माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर नागर सर, जो हमारे पथदर्शक प्रेरक हैं, और सर आपके लिए जितना कहूँ कम है, जितना शब्द कहूँ कम पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया सर। इस संगोष्ठी को सफलता प्रदान करने के लिए हमारे सभी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर झाला सर, डॉक्टर दवे सर, डॉक्टर विशाल सर, डॉक्टर नौगण भाई, सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। उनका मार्गदर्शन, उनका समय और उनके ज्ञान का दान हमें मिला है, और इसीलिए हम आपके ऋणी हैं। सभी का मैं तहे दिल से हमारी संस्था की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इस संगोष्ठी का सुंदर आयोजन किया गया, लेकिन यदि प्रतिभागी नहीं होते तो संगोष्ठी का कोई वजूद नहीं है। और इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए हमारे प्रतिभागी अध्यापक मित्रों और प्रतिभागी छात्राओं ने उत्साह से अपना नाम दर्ज कराया, यहाँ आए और हमारी इस संगोष्ठी को सुंदर बनाने का काम किया। अतः मैं सभी प्रतिभागी अध्यापक मित्र और सभी छात्राओं का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस परिसंवाद के आयोजन में हमारे अध्यापक मित्रों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। हर एक कार्य में साथ दिया है, ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा काम नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सभी ने कंधे कंधा मिलाकर अपना काम उठा लिया है, और उतना ही हमारी ये प्यारी छात्राओं ने भी, हमारी सारी वॉलंटियर्स ने भी सहयोग दिया है। उन सभी के बिना ये काम सरल नहीं है। ये संगोष्ठी कोई एक व्यक्ति के विचार से नहीं होता। इन सभी का साथ, सहकार और शक्ति की आवश्यकता होती है, और इन सभी की नींव में है हमारे अध्यापकगण, हमारी छात्राएं, हमारे वॉलंटियर्स। इसके साथ इस नींव में जुड़े हुए हैं हमारे एडमिन स्टाफ। जहाँ भी जरूरत पड़ी कभी उन्होंने घड़ी नहीं देखी कितना बजा है। चाहे हमारे अमित भाई हो, मित भाई हो, देवेन भाई हो या बीना मैडम हो, सभी ने उतना ही प्रयत्न किया है। आप सभी के प्रति भी मैं ऋणी हूँ, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस संगोष्ठी में सामने जो ऑडियंस न हो तो भी अधूरा है, और ये हमारी सभी छात्राओं ने इसको शोभायमान किया है। आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था के सेवकगण, जिन्होंने भी जी जान से कितने समय से लगन से काम किया है, और इस सेवकगण में हमारे सीमा मैडम हो, उषा बहन, भावना बहन और हमारे देवा बापा, सभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत साथ सहकार दिया है। उसका भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। इसके अतिरिक्त साउंड एंड लाइट सिस्टम मैनेजिंग कमेटी सभी सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रेस मीडिया के सभी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा यदि किसी का नाम रह जाता हो तो मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और सभी का हमें साथ मिला है, बहुत आनंद मिला है, बहुत कुछ पाया है।
धन्यवाद। अब हम राष्ट्रगान करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।